Hello friends, how are you? We'll continue with our in-text questions. In the previous lecture, I taught you 3 in-text questions which were based on the various equations of motions. Then I gave you in-text question number 4 to solve on your own. I am sure you would have solved it and got the correct answer. Today we will solve question number 5. So what is the question? A stone is thrown in a vertically upward direction. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड. यानी कि ये जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, that initial velocity is 5 मीटर पर सेकंड. So initial velocity, that is u, will be taken as 5 मीटर पर सेकंड. Okay. Now its acceleration is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in downward direction. तो इस बात का क्या मतलब है? जब हम किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका मोशन होता है ऊपर की तरफ, बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट ट्राइज टू पुल इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो उस वजह से जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन ऑब्जेक्ट का मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है. इस हिसाब से दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हैज टू बी टेकन एज नेगेटिव. वंस अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग. द एक्सेलरेशन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट द मोशन ऑफ द स्टोन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो जब आप एक्सेलरेशन को कंपेयर कर रहे हो विथ मोशन, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है. सो इन दैट केस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन has to be taken as negative, so its value will be taken as 10 meter per second square. Okay, what will be the height attained by the stone? यानी अगर हम किसी चीज को ऐसे ऊपर उछालेंगे तो it will reach a certain height, and after reaching that certain height it will come back. तो the maximum height reached is equal to the distance traveled by the stone. तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है क्या? The maximum height reached by the stone. So in other words, I have to find the distance traveled by the stone. So distance traveled by the stone, that is s, will be equal to question mark. Second thing, how much time will it take to reach there? So हमको टाइम भी फाइंड करना है. अभी ये जब स्टोन मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब स्टोन की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, because when its final velocity becomes 0, then it will start coming downward direction. Okay, फिर से समझ लो कि मैंने स्टोन को सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर उछाला. इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे जैसे स्टोन ऊपर जाएगा ड्यू टू नेगेटिव एक्सेलरेशन इट्स स्पीड विल गो ऑन डिक्रीजिंग. तो 5 से 4 होगा, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1. एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब स्टोन की स्पीड हो जाएगी 0. जब वो 0 हो जाएगी then it will not go upward, फिर उससे अप नहीं जाएगा, वहां से वो स्टोन वापस आएगा. यानी कि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी हम लेंगे स्टोन की, that is v, will be equal to 0 मीटर पर सेकंड. तो समझ लेते हमारे पास कितनी चीजें हैं. I have value of u, I have value of v, I have value of a. From this much data I need to find two things. I need to find the value of s, I need to find the value of t. सपोज पहले हम t की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो हमारे पास एक इक्वेशन था v माइनस u इज इक्वल टू et. ओके, इसमें हम वैल्यूज डालते हैं. तो v की वैल्यू है 0 माइनस u की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड. सो 0 माइनस 5 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a की वैल्यू है -10 into I need to find the value of t. So 0 minus 5 will give me -5 is equal to -10t. So therefore -5 upon -10 is equal to t. So therefore t will be equal to 1/2, that is 0.5 second. यानी कि वो स्टोन है उसे मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए कितना वक्त लगेगा? 0.5 सेकंड. So after getting the value of t, now my next target is to find the value of s. s का हमको पता है, s is equal to v square minus u square upon 2a.
ओके, सो व्हाट इज v स्क्वायर? तो v की वैल्यू है वो है 0, सो आई विल राइट 0 होल स्क्वायर माइनस u, you can see that value of u is 5, so here I will have 5 whole square upon 2 into 8 is minus 10. Okay, so when you simplify you will have s is equal to 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, minus 5 square, so minus 5 square is 25, so 0 minus 25 will give minus 25 upon 2 into minus 10 will give minus 20. So in short, s will be equal to 5 upon 4. And when you carry out its simplification, the maximum distance traveled by the stone is 1.25 meter, and the time taken to reach that height will be 0.5 सेकंड. ओके, सो बहुत इजी सम है, फिर से एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं. A stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब हम स्टोन को फेंकते हैं उस वक्त उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, यानी ये हुई हमारी इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी को हम इससे डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u, सो आई हैव u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड. Its acceleration is 10 meter per second square, but in which direction? Downward, because gravitational acceleration will be always towards the earth, and stone is moving away from the earth in the upward direction. So the direction of the motion of the stone and the direction of acceleration both are opposite to each other. So we will take the value of a as minus 10 meter per second square. अभी हमको फाइंड क्या करना है? What will be the height attained by the stone? यानी कि ये जो स्टोन है वो कौन सी हाइट तक रीच करेगा? सो द हाइट रीच बाय स्टोन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्टोन. सो देयरफॉर s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. I also need to find the time taken to reach that particular height. So t is equal to question mark. Now what will be the final velocity? जब स्टोन अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि वहां से वो फिर वापस गिरना शुरू करेगा. सो फाइनल वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं v से इज 0 मीटर पर सेकंड. इतना करने के बाद मैंने सबसे पहले t को फाइंड करने के लिए हमारी जो फर्स्ट फॉर्मूला थी उसका यूज किया, दैट इज v minus u is equal to at. हमारे पास v की वैल्यू थी 0, u की वैल्यू थी 5, सो 0 minus 5 is equal to एक्सेलरेशन a की वैल्यू थी -10 और t मुझे फाइंड करना था, सो into t. सो 0 minus 5 that is -5 is equal to -10 into t. To find this value of t, I will take -10 on the left hand side. Here it is in multiplication. When I bring it in opposite direction, it will go for division. So -5 upon -10 is equal to t. माइनस माइनस कट हो गया, 5/10 यानी 1/2, 1/2 यानी हाफ हुआ. सो टाइम टेकन इज 0.5 सेकंड. फिर मैं फाइंड करूंगा डिस्टेंस s. उसकी फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 5, a की वैल्यू -10. When I substituted all these things, I got the value of s is -25 by -20 is equal to 5/4. और इसको डिवाइड करेंगे तो हाइट की वैल्यू आएगी 1.25 मीटर. So you can write it in the answer statement that the height attained by the stone will be 1.25 meter and the time taken to reach that particular height will be 0.5 seconds. Okay, dear students, so now we have approached to the end of the chapter. Now we are going to discuss the last theory of this particular chapter, that is chapter 8, motion. The topic is uniform circular motion. Till now हमने जो कुछ भी पढ़ा that was for a linear motion. Okay, now we are going to study about the uniform circular motion. Before we start about this thing, when do we say that an object is having an accelerated motion? तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेटेड मोशन तब बोलते हैं जब उसकी वेलोसिटी है वो चेंज होती है. ओके, वेलोसिटी आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. सो व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, सच मोशन इज नोन एज accelerated motion. If the velocity is increasing,
then the value of acceleration is taken as positive, and if the velocity is decreasing, in that case the value of acceleration is taken is negative. So in short हमको क्या याद रखना है कि जब भी there is a change in velocity तो उसको हम बोलते हैं accelerated motion. Now the question arises that what causes change in velocity? Velocity change किस तरह से हो सकती है? तो change in velocity can be obtained by two ways. Either by changing its magnitude यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो चेंज करो, or by changing its direction. Yes, you heard it right. You can change the velocity of an object by simply changing its direction. तो आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है उसको चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं और वेलोसिटी चेंज हो जा रही है। लेट मी गिव यू वन रियल लाइफ एग्जांपल। आप सब लोग व्हीकल्स चलाते होंगे, टू व्हीलर, स्कूटर, बाइक, एक्टिवा, व्हाटएवर। तो आपने क्या महसूस किया है कि जब आप टर्न लेते हो उस वक्त आप एक्सेलरेटर कम कर देते हो। क्यों? क्योंकि जब आप टर्न लेते हो, जब आपकी डायरेक्शन चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली द स्पीड ऑफ योर व्हीकल इंक्रीजेस बाय सम मार्जिन। ठीक है, आप भले 10 की स्पीड से चला रहे हो, लेकिन आप महसूस करोगे कि जब आप टर्न लोगे तो आपने एक्सेलरेशन नहीं किया है, वो स्पीड वही की वही है, लेकिन जैसे ही आप टर्न कर रहे हो आपको महसूस होगा कि आपकी स्पीड फ्रैक्शनली इंक्रीज हुई। So once again, whenever there is a change in direction of an object, there is change in velocity, and when there is change in velocity, we can say that object is having an accelerated motion. To understand it properly, we will take one more example over here. Suppose ABCD represents a rectangular track. कोई एक rectangular track है जिसपे एथलीट दौड़ रहा है. So athlete starts running from point A. From A he goes to B, from B to C, C to D, and from D to A. So he completes one whole circle of the track. तो उसको दौड़ते वक्त if he is running at the uniform speed, he will have to change direction how many times? तो सबसे पहले तो वो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, फिर B से वो टर्न लेता है, फिर यहाँ पे चेंज करेगा, यहाँ पे चेंज करेगा। सो मींस इन शॉर्ट जितने कॉर्नर्स है उतनी बार उसे क्या करना पड़ेगा? he will have to change his direction. Okay, so you can say that when he is running on a rectangular track, he is changing his direction 4 times. Means he is having accelerated motion. क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ तो वो वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है। सो he is experiencing accelerated motion 4 times when the athlete is running on a rectangular track. अभी सपोज हमारा ट्रैक हुआ हेक्सागोनल having 6 corners. Okay, so from A to B, B to C, C to D, E to F and F to back A. तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि यहाँ पे कितने कॉर्नर्स हैं। तो हेक्सागोन है तो ऑब्वियसली कॉर्नर्स कितने होंगे? 6। तो ये जो साइड बढ़ी, ठीक है, कॉर्नर्स बढ़े, यानी कि उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी 6 टाइम्स। मींस ही इज अंडरगोइंग एक्सेलरेटेड मोशन 6 times at 6 points, that is A, B, C, D, E and F. अभी हेक्सागोनल पार्क का हमने बना दिया ऑक्टागोनल पार्क. So octagonal park will have 8 corners. ठीक है? So when he's running on an octagonal park, he will have to change his direction 8 times. तो ऐसे करते करते मैं सर्कल के नजीक लाता गया और मैंने ट्रैक को बना दिया सर्कुलर. तो जब वो ट्रैक हो गया कंप्लीटली सर्कुलर, तो उसका मतलब क्या हुआ? द एथलीट will have to change his direction at each and every point. यानी कि जब कोई एथलीट सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है तो he is undergoing accelerated motion at each and every point. ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही मैंने कॉर्नर्स बढ़ाए, ठीक है, मैं यहां से रेक्टेंगल से शेप को सर्कल की तरफ ले जा रहा हूं. तो जैसे रेक्टेंगल से सर्कल की शेप की तरफ मैं ले जा रहा हूं, वैसे ही उसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है.
जैसे नंबर ऑफ कॉर्नर्स इंक्रीज हो रहा है, द टाइम ही इज अंडरगोइंग एक्सेलरेटेड मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जब ये सर्कुलर ट्रैक हो गया तो हर एक पॉइंट एक साइड बन गई जहां पे उसकी डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इस डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली गेटिंग चेंज। एंड व्हेन इस डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली गेटिंग चेंज, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, एंड व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, you can say that a person is undergoing accelerated motion. So in short, when any track or any object is moving in a circular path or circular orbit, it undergoes accelerated motion at each and every point. ठीक है, अभी मुझे फाइंड करनी है वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर ट्रैक पे मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला, अब तक हमने फॉर्मूला जो यूज की, ठीक है, फॉर्मूला वही की वही रहेगी। वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी की फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस। तो सपोज सर्कल पे यहाँ से एक बंदा है, वो गोल घूम के यहाँ तक पहुंचेगा, तो उसने एक वो पूरा जब सर्कल लगाएगा तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू सर्कमफरेंस। सर्कल का सर्कमफरेंस इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और सर्कल के सर्कमफरेंस की फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला फॉर सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r, यानी 2 पाई r क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन t। सो इन शॉर्ट आपको जब भी वेलोसिटी फाइंड करनी है ऐसे ऑब्जेक्ट की दैट इज अंडरगोइंग मोशन इन अ सर्कुलर पाथ और अ सर्कुलर ऑर्बिट, then the formula to be used will be velocity v is equal to 2 pi r upon t। ये 2 pi r कुछ और नहीं है, 2 pi r is simply the distance traveled by the object, क्योंकि एक पूरा सर्कल लगाने के लिए, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना कि सर्कुलर पाथ का सर्कमफरेंस है। और सर्कमफरेंस फाइंड करने की फॉर्मूला है 2 pi r, where pi की वैल्यू you can take as 22/7 or 3.14 determining on depending on what the values of r are given, ठीक है। और r क्या होगा, ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसका रेडियस। सो इन शॉर्ट, to find the velocity of an object which is moving under circular path is v is equal to 2 pi r upon t, where 2 pi r represents the distance traveled by that particular object and t is the time taken to travel that much distance. Okay, now what is the definition of uniform circular motion? When an object moves in a circular path with uniform speed, once again, when an object moves in a circular path with uniform speed, then its motion is called uniform circular motion। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन यू माइट आल्सो गिव सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज अ साइक्लिस्ट हु इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक बट विथ अ कांस्टेंट स्पीड। तो ट्रैक है वो सर्कुलर है और उसकी जो पेडलिंग की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो जो उसका मोशन होगा दैट विल बी एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। The motion of moon around the earth can also be taken as example of uniform circular motion. Similarly, motion of satellites in circular orbit around the earth can also be taken as example of uniform circular motion. Why? क्योंकि इस केस में जो सैटेलाइट है और जो मून की स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज होती नहीं है। और ऑर्बिट अगर आप सर्कुलर लोगे तो वो डेफिनेटली एग्जांपल हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो अब बात हुई कि जब भी कोई ऑर्बिट शेप में या सर्कुलर शेप में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ईच एंड एवरी पॉइंट। तो उसका एग्जांपल्स क्या है, तो यू कैन टेक अ थ्रेड में आप एक स्टोन लगा दो और ऐसे सर के ऊपर गोल गोल घुमाओगे, ओके। सो एवरी टाइम इफ योर रिलीजिंग पॉइंट इज डिफरेंट, then the direction in which the stone will be also different। क्यों? क्योंकि when you release at different points then it will move in the direction of tangent। उस वक्त जो स्टोन की पोजीशन होगी, अगर स्टोन यहाँ है और टेंजेंट इस तरफ जा रहा है तो स्टोन जाएगा इस तरफ। अगर मैंने रिलीज किया जब स्टोन इस तरफ था और टेंजेंट जा रहा है इस तरफ तो स्टोन मूव करेगा इस तरफ।
अगर मैंने स्टोन को रिलीज किया जबकि स्टोन इधर था और टेंजेंट था इस तरफ, तो स्टोन विल मूव इन दैट डायरेक्शन. सो एट ईच टाइम द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टोन विल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ रिलीज. और जो उसकी डायरेक्शन होगी, दैट डायरेक्शन विल बी टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ रिलीज. यानी कि जिस पोजीशन में आपने स्टोन को रिलीज किया, वहां से आप टेंजेंट यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उस डायरेक्शन में स्टोन ट्रैवल करेगा. ठीक है. सो इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी, मेक श्योर यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन एन ओपन ग्राउंड. यानी अगर आप सोसाइटी में करोगे तो सोसाइटी वालों की खिड़की का हाथ तोड़ोगे, फिर मत बोलना कि सर ने ऐसा बताया था. ठीक है. सो इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट, परफॉर्म इन सम ओपन स्पेस. तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एक इंडेक्स क्वेश्चन कंप्लीट किया और फिर वी स्टडीड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. उसमें याद रखने वाली बातें कौन सी है कि एक्सेलरेटेड मोशन कब बोलते हैं? जब स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है, तब मोशन हो जाता है एक्सेलरेटेड मोशन. वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है. सो वेदर द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, the motion is known as accelerated motion. But only difference is that if the velocity is increasing, then the value of acceleration is taken as positive, and if the velocity is decreasing, then the value of acceleration is taken as negative. तो बात आई कि velocity कैसे चेंज कर सकते हैं? तो velocity could be changed by either changing its magnitude, उसकी जो velocity की वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है उसे चेंज करो, या वैल्यू वही की वही रखो, चेंज द डायरेक्शन. तो डायरेक्शन चेंज करने पे भी वेलोसिटी हो जाती है चेंज. फिर हमने रेस ट्रैक का एग्जांपल लिया कि जैसे ही ट्रैक में हम कॉर्नर्स को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, साइड्स बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसके जो नंबर ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन वाले पॉइंट्स है वो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज द पर्सन हैज टू चेंज द डायरेक्शन. जब जब कॉर्नर आता है तब उसको अपना डायरेक्शन होता है वो चेंज करना पड़ता है टू रिमेन इन द ट्रैक, अदरवाइज वो ट्रैक से बाहर चला जाएगा. एंड व्हेन द डायरेक्शन इज चेंज, you can say that velocity is also changed, and when velocity is changed, such motion is accelerated motion. तो जब कोई सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है एंड ईच एंड एवरी पॉइंट, वो यहाँ पे यानी किसी भी पॉइंट पे है, कंटिन्यूअसली उसको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है. सो दैट पर्सन इज अंडरगोइंग एक्सेलरेटेड मोशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट. उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर मुझे फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट व्हिच इज ट्रैवलिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, वेलोसिटी की फॉर्मूला तो सेम है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो एक चक्कर लगाने के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मैथ्स कि अगर आपको सर्कमफरेंस फाइंड करना है, द फॉर्मूला टू फाइंड सर्कमफरेंस इज 2πr अपॉन टाइम टेकन. टाइम टेकन इज t. So you can use this formula where you can take the value of pi as 22/7 or 3.14. and r will be the radius of the circular track or object, whatever the path. Okay. Then we studied the example of definition of uniform circular motion. We also studied certain live examples when you can see uniform circular motion, like a cyclist on a circular track but with a constant speed, motion of moon and motion of satellite in circular orbit. So now in the next lecture we will start solving the numericals of exercise. Okay, if you have studied the examples and in-text questions very properly, then those sums in the textbook exercise will seem to be very easy. Again, as I said in the beginning of the chapter, in this particular chapter more weightage is given to the numericals, so be sure that you know each and every numerical very properly. So see you next time while we will solve the exercise numericals. Thank you.